नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में मकान नंबर 575 में संदिग्ध विस्फोट पर सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने कहा कि CSFL की टीमें आएंगी। एक 3 व्हीलर वाहन बरामद हुआ है, लेकिन अभी आरोपी नहीं मिला है। हम जांच कर रहे हैं, सभी जगहों पर हम जांच कर रहे हैं। हुई अभी तो पेंडिंग है। अभी तो CSFL वगैरह आएंगी, टीमें आएंगी। अंधेरे होने करके ना तो रात पूरा जड़ा हमारा मिशन है पूरा नहीं हुआ। अभी CSFL टीमें आएंगी। वो अभी तो नहीं हो रहा कोई, नहीं अभी कोई नहीं है। वो तो 3 व्हीलर की खोज कर रहे थे, 3 व्हीलर ही मिला है अभी तक। वो जो करने वाले वो अभी तक नहीं। तो अभी जारी कर दिया उन्होंने 2 लाख। हाँ, वो उस रात प्रेस नोट कराया था, उसका कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। पंजाब से भी लिंक आ रहा है इसका? सभी जगह से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अफसर इत्थे रहंदे सीगे, वो लिंक आ रहा है कि पहला भी नहीं, अजे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, किस चीज ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ CSFL ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੇਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਇਰ 43 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 43 ਤੋਂ 43 ਤੋਂ। ਉਹ 43 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 43 ਉਤਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 43 ਕੇ ਰਸਤੇ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 43 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, 43 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਟੋ ਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਏਗਾ, ਕਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਰੁਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਠੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ठीक है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जगमोहन आनंद ने करनाल से अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है। जो अपना शहर है करनाल की जो विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फार्म भरा है, यही हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद इसराना में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस समय मेंबर हैं हमारे श्री क्या नाम, कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ड्यूटी अगर देगी तो यहाँ जो बचे हुए नीलोखेड़ी है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, इन क्षेत्रों में भी जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी उन स्थानों पर मैं जाऊँगा। अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन भरे जा रहे हैं।
लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी अपना घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा अभी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फार्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फार्म पहले से भर दिए हैं। तो इसलिए एक बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही हैं, वो नए कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले 10 साल का हमारा शासन, विशेष तौर पर अभी 2 महीने का हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जो शासन, जिसमें लगभग 125 से ज़्यादा घोषणाएं उन्होंने की और काम पूरे किए हैं, और इसके सामने कांग्रेस जो है वो बहुत फीकी पड़ रही है। पिछले 10 साल का जो उनकी जातियां हैं, जो उनके अत्याचार हैं, जो भयनुमा एक वातावरण बना हुआ था, जनता को आज भी याद है, जनता उसको भूली नहीं है। हमसे हिसाब मांगने की बात कहते हैं, हिसाब हमारा जनता के पास है। जनता हमारे कामों को लेकर के जवाब देगी कांग्रेस को। लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोल गए हैं कि हम आएंगे तो देखेंगे कि आरक्षण कब खत्म करना है। कांग्रेस की आरक्षण खत्म करने की साजिश है। ये पहले SC/ST को आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस हमेशा से OBC आरक्षण का विरोध करती रही है। यहाँ राहुल गांधी भाषण देते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और 50% से ऊपर आरक्षण देंगे, फिर आप बाहर जाकर ऐसे बयान देते हैं। आप समानता के अधिकार को खत्म कर देना चाहते हैं। यदि आप में हिम्मत थी तो आपने कर्नाटक में जातिगत जनगणना क्यों लागू नहीं करते हैं, मणिपुर में जाके जो है भड़काऊ भाषण दे दें। और आरक्षण के ऊपर आप ये समझिए कि राहुल गांधी यहाँ बैठते हैं, यहाँ वो पत्रकारों से पूछते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हो कि शेड्यूल ट्राइब हो कि OBC हो। बिजनेसमैन के बारे में पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, OBC हो। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसके बारे में वो कहते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC जो है लड़कियां आज तक जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं गई। राहुल गांधी आरक्षण के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बोल गए कि हम आएंगे तो आरक्षण को रिव्यू करेंगे, कि देखेंगे कि कब आरक्षण खत्म होना है। ये जो साजिश है आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की, एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने को तैयार नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई और फाइनली नेहरू के कारण जो है वो केवल 10 साल के लिए हुआ, और 10-10 साल में हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के OBC के आरक्षण को बढ़ाते हैं। OBC के आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमेटी बनी, 57-58 में रिपोर्ट आया, कभी लागू नहीं हुआ। 61 में नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। 67 में तो दरोगा राय उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आरक्षण लागू करने की कोशिश की, उनको रातों रात लात मार के भगा दिए। फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, इंदिरा गांधी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की, राजीव गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब BP सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो राजीव गांधी का बड़ा भयंकर भाषण है कि ये बड़ा काला दिन है, काला कानून है और ये नहीं लागू होना चाहिए। और 1952 से लेके 1990 तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो रहे उसमें OBC रिजर्वेशन का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रही। तो उन्होंने वहां कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ वो क्या भाषण देते हैं, यहाँ वो 2 चीजें करते हैं। यहाँ वो भाषण देते हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे और 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे देंगे। इस देश में अब 60% रिजर्वेशन है। जिस आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, तो आप क्या करना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको निगेट कर देना चाहते हो, उसको खत्म कर देना चाहते हो, और ऊपर से जो है आप जातिगत जनगणना के ऊपर भड़काते हो। यदि आप में हिम्मत है तो अमेरिका में जिस लोगों से आप मिल रहे हो, जो भारतीय आपसे मिल रहे हैं, कभी आपने पूछा है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो कि शेड्यूल ट्राइब हो, OBC हो? आपको ये नहीं लगता कि भारत में जो है अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के कारण नहीं मिली, तो चाहे पूरा सैन फ्रांसिस्को है, चाहे अमेरिका है, चाहे UK है या ब्रिटेन है, जर्मनी है, जहाँ कहीं भी लोग गए वो यहाँ के ब्रेन गए, और आप ऊपर से जो है वहाँ
भड़काऊ भाषण दोगे, वहाँ के लोगों को भड़काऊ भाषण दोगे। यहाँ जो है आप ओबीसी के नाम पर भड़काना चाहते हो। यदि आप में हिम्मत था तो जातिगत जनगणना आपने कर्नाटक में क्यों नहीं लागू की? आपकी सरकार है, वहाँ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू किया? तो एक तरफ उनको खालिस्तान बनाना है, एक तरफ उनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है मुसलमानों के साथ, एक तरफ उनको जो है कश्मीर को भूभाग में कर देना। तो इसीलिए वो गोरबाचोव हैं। और मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए सोचने वाली शर्मनाक घटना है कि अभी तक वो एक सांसद के नाते, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते जाते थे, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और भारत की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा ऐसी रही है कि पक्ष और विपक्ष सभी की विदेश नीति एक साथ रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने जो है डेलीगेशन का नेतृत्व किया था, भारत सरकार ने कराया था। और जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब भी जो है डेलीगेशन का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश हित में काम किया है। लेकिन राहुल गांधी का जो है इलाज कराने की आवश्यकता है। यदि इलाज नहीं हुआ प्रॉपर, उनके माइंड समझने की आवश्यकता है, या उनके मूवमेंट को भारत सरकार को देखने की आवश्यकता है कि ये किस तरह से देशद्रोही ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सीरिया, जॉर्डन की तरह जो है, या फिलिस्तीन की तरह यहाँ माहौल बनाना चाहते हैं, या बांग्लादेश की तरह यहाँ माहौल बनाना चाहते हैं। ये जो उनके शब्द हैं, इसको देखना। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की। धारा 370 हटने के बाद जनता में भारी उत्साह है। अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी पर रोक लगी है। 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जो कांग्रेस ने जुर्म किए, अब वहां पर शांति है। लाल चौक पर जाने में तत्कालीन गृह मंत्री घबराते थे, आज कोई भी नागरिक वहां जा सकता है। ये भाजपा की चुनावों का दौर चला है। भाजपा की ओर से सीटों का जो आवंटन हुआ है और प्रत्याशियों की सूची संशोधन को लेकर विवाद हुआ था पिछले दिनों, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सीटों की घोषणा की और जनता में भारी उत्साह है। धारा 370 हटने के बाद जो खुशहाली, शांति देखी, अलगाववाद, आतंकवाद और पथरावबाजी पर रोक लगी है। 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जो कांग्रेस ने जुल्म किए थे, धारा 370 लगाकर 45,000 लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई, आतंकवादियों के द्वारा हुई, अब वहां पर शांति है। लाल चौक पे जाने पे उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी घबराते थे। आज आप में से कोई भी नागरिक वहां जा सकता है, कॉफी पी सकता है, टहल सकता है, खरीदारी कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। शांति भी, विकास भी, समृद्धि भी, संपन्नता भी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले 4.5 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संशोधन में जिलाधिकारी को ये शक्ति मिलेगी कि वो जांच कर सकेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई मुस्लिम अध्यापक अगर कक्षा में पढ़ा रहा है तो नमाज का समय हो जाए तो इस्लाम में नमाज माफी भी है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाकर ही कक्षा से निकले, ये संशोधन। देखिए, वक्फ बोर्ड नियमावली को पहले लोग समझ लें। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, अगर वो ये कह दें कि राजेश जी का घर हमारा है, तो डीएम के यहाँ चले जाएंगे खाली कराने के लिए। तो संशोधन में मात्र इतना है कि अगर कोई इस तरह की बात करता है वक्फ बोर्ड का, तो वो डीएम के पास पावर होगा। वो पहले जांच कर ले कि वो घर राजेश का है कि नहीं, राजेश रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो अब उस पर कार्रवाई होगी। ये पहला चीज है। कोई भी मुस्लिम अगर लेक्चर दे रहा है क्लास में, अगर लेक्चर के समय नमाज का टाइम हो गया, तो इस्लाम में नमाज माफी भी है, तो वो बच्चों को पढ़ा करके ही तब निकले। ये संशोधन है कि जब आप लेक्चर दे रहे हो, अगर नमाज का टाइम हो तो आप बाहर नहीं जा सकते। ये कौन सी बुरी बात है? ये जो तमाम तरह की अटकलें जो लगा रहे हैं, अभी कल वक्फ बोर्ड के लोग मीटिंग किए थे,
आप उठा के देखिए, 2016 में केंद्र सरकार ने एक कानून दिया कि मदरसों में मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए 60-40 के रेशियो में। 60% धन केंद्र सरकार और 40% प्रदेश सरकार। तो ये 3 साल पहले केंद्र सरकार ने अपना राज्यांश बंद कर दिया, प्रदेश सरकार ने 1 साल तक दिया और 2 साल से नहीं मिल रहा है। उसी बात को लेकर के ये लोग परेशान हैं कि या तो ये हमसे वापस ले लिया जाए कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, या अगर पढ़ाना है तो फिर हमारे अध्यापकों को सैलरी मिले, ये उनका कहना है। दोनों बातें उनके सामने वो क्लियर कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसको भी खुलवाया जाए और अध्यापकों को पढ़ाने के लिए जो सैलरी बकाया वो दिया जाए और उनको सैलरी मिले, यही बात तो कह रहे हैं। करेल में भी उपचुनाव है, प्रदेश की अन्य 10 सीटों पर भी, तो कैसे देख रहे हैं परिणाम करेल में? कैसे 10 जीतेंगे महाराज, 10 जीतेंगे। देखिए धोखा दिया है इन लोगों ने अति पिछड़ों को, सपा के लोगों ने अति पिछड़ों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, सामान्य वर्ग को धोखा दिया, सबको तो धोखे दे रहे हैं। तो धोखा खाते खाते सब थक गए। आप देखिए 19 साल सपा बसपा की सरकार थी, इन दोनों लोगों से उबिया करके लोग भाजपा के साथ गए, और आज जिस तरह के ये भाषा बोल रहे हैं ये लोग, उनकी भाषा से बहुत लोग मर्माहत हैं। और आज आपने देखा कि बरसात के मौसम में कुर्सी कपार पर रख करके लोग मीटिंग में भाषण सुन रहे हैं, तब बूथ पर कितनी तेजी से जाएंगे लोगों को लेके। हमारे सहयोगी दल हैं, अपना दल है, संजय निषाद जी हैं, वो जयंत चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, हम सभी लोग मिलकर के बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ भेड़िया बार बार हमला कर रहा है और किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला बुधवार रात का है। थाना खेरी घाट इलाके में कोरियनपुरवा टेपरा गांव में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर भेड़ी ने हमला किया है। महिला अपने घर में सो रही थी, तभी महिला पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। हालांकि तुरंत आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद भेड़िया भाग निकला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत में सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाने के बाद भाजपा के सिख नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी दी। कांग्रेस पार्टी ने इसका वीडियो भी शेयर किया। मणिपुर की हिंसा एक बार दोबारा शुरू होने के बाद फिर भयावह रूप लेती नजर आ रही है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया है। वहीं इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि थौबल जिले में BNS की धारा 163 लागू की गई है। गाजा और फिलिस्तीन के मजलूमों पर इजरायली जाहरियत को लेकर राहुल गांधी की बयान बेहद मायने खेज है। वहीं हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान की मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत का स्टैंड भी फिलिस्तीन को लेकर बरसों से साफ है। भारत एक खुद मुख्तार और आज़ाद फिलिस्तीन नेशन की हिमायत करता है। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की गाजा और फिलिस्तीन को लेकर फिक्र ये साफ बताती है कि अब इजराइल ने वहां सारी हदें पार कर दी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।